بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہم میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ دو طرح کی کامیابیوں پہ کام کرے، ایک دنیا کی کامیابی، ایک آخرت کی کامیابی۔ اور آج ہمارا سب ٹاپک ہے فریڈم آف چوائس۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ گفٹ دیے ہیں۔ جو شخص ان گفٹ کی پہچان صحیح طرح کر لے گا، اس کی کامیابی دوسروں سے زیادہ اچھی اور فاسٹ ہو جائے گی۔ اس میں سے پہلا گفٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس کو فریڈم آف چوائس دیا، آزادی دی ہے کہ جو چاہے پسند کر لو۔ ہمیں آزادی، ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، جس طرح کا لباس، جس طرح کی گاڑی، جس طرح کا ماحول چاہیں ہم اپنے لیے بنا سکتے ہیں یا اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ زندگی کی اور آخرت کی کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ ایک شخص نے 10,000 کا سوٹ پہن لیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں کامیابی نہیں ملے گی، اس کی یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو وہ کامیابی ہو جائے گا۔ ایک شخص نے گاڑی بڑی اچھی لے لی ہے کسی طریقے سے تو وہ کامیابی اس کے ساتھ ہے یہ نہیں۔ ایک شخص مٹن کھاتا ہے یا قورمے کھاتا ہے یا وہ باربیکیو کھاتا ہے ڈیلی، تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا تعلق اس چوائس سے نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا تعلق ہے وہ چوائس۔ فریڈم آف چوائس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی چوائس کرے جس میں اس کا دماغ اور اس کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کامیابی دو طریقوں سے سمجھی جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کو کامیاب تب کہا جائے گا یا تو اس کے پاس اتھارٹی ہو یا وہ فائنینشلی، مالی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ملتی کس طرح ہیں؟ یہ آپ کی اور ہمارے ذہن کی پروگرامنگ سے ملتی ہیں۔ جس کا جتنا اچھا دماغ ہوگا اور جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا اور جتنی اچھی صلاحیتیں اس کے دماغ میں ہوں گی اور اس کو اسی طرح سے وہ اسی صلاحیتوں کو صحیح طرح بروئے کار لائے گا تو وہ کامیابی جلدی حاصل کر لے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اپنے ذہن کی پروگرامنگ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس کیا ہوا، اسی ذہن کی پروگرامنگ کے لیے ہمارے پاس ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ آپ نے ان باؤنڈریز پہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے آپ چلیں گے اور ان چیزوں کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ ہماری چوائس پہ نہیں چھوڑا گیا۔ مثلاً ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے اچھے گریڈ لینے ہیں، پھر آپ کو گریڈ لینے کے بعد آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے، پھر آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ کو دوسرے کالج یا یونیورسٹی میں آپ کو اچھی ایڈمیشن ملے گا، پھر آپ ایک اچھی جاب کریں گے۔ حالانکہ معاشرے کے اندر ان لوگوں کو کامیاب نہیں تصور کیا جاتا، نہ تو ان کے پاس زیادہ اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئرز اور یہ جتنے پروگرامرز ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، ان کے پاس نارملی یہ بہت محنت کر کے آتے ہیں، لیکن نہ تو ان کے پاس خاص اتھارٹی ہوتی ہے معاشرے میں، اور نہ یہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک امپائر کھڑا کر لیں یا وہ اپنی نسلوں کو دے جائیں۔ اس میں ایک ڈرا بیک اور ہے کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس ٹریک پہ چلیں، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نظام تعلیم لارڈ میکالے نے بنایا تھا بر صغیر کے اندر، اور اس نے کہا تھا کہ یہ امپلیمنٹ کرو، یہ لوگ شکل و صورت اور لباس میں، بول چال میں ہندوستانی ہوں گے اور ان کا کام اور دماغ ہمارے لیے چلے گا۔ اب ہم یہاں پہ ابھی کرونا نے کیا کیا ہے؟ ہماری پوری ورلڈ کی تھیوری چینج کر دی ہے۔ پورے ورلڈ کے اندر جتنا چینج اس وقت آیا ہے، شاید کائنات نے اتنا بڑا چینج پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ورلڈ کی تھیوری چینج ہو چکی ہے۔ اب جو لوگ جاب کرتے تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے پاس اچھی ڈگری ہوگی، آپ کے پاس اچھی جاب ہوگی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جاب لیس وہ لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ ہے کہ ان کو پیٹ کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے پالتو ہیں، جیسے پالتو جانور ہوتے ہیں نا گھروں میں، یہ پالتو ہیں۔ اب اس شخص کو بھی یہ نہیں پتا کہ مجھے اس حالات میں کیسے کیا کروں، میں میری ارننگ کیسے ہوگی۔ چوائس ہمارے پاس کیا تھی؟ یا تو ہم ڈگری لے لیں یا ہم وے آف ارننگ کو لرن کریں کہ ہم نے ارننگ کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہم میں سے جو بھی شخص کام کر رہا ہے وہ ارننگ کے لیے کر رہا ہے۔
डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, उसके पीछे वर्डिंग कुछ भी हो कि जी मैं कौम की खिदमत करूंगा, लेकिन कोई भी शख्स फ्री नहीं कर रहा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम देखते हैं माशरे में कोई भी डॉक्टर जो है अपनी फ़ीस कम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी डॉक्टर जो है वो इंजीनियर जो है वो अपनी सर्विसेज फ्री देने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई भी शख्स जो है वो काम जो कर रहा है वो अपनी अर्निंग के लिए कर रहा है। अगर अर्निंग उसको ये सिखाया जाए कि हाउ टू अर्न, आप कैसे कमाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना ज़रिया माश बना सकते हैं, तो वो इन हालात के अंदर जो है वो फारिग नहीं बैठेगा। मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है कि इन हालात में बहुत लोग, जॉब वाले सबसे ज़्यादा परेशान हैं। जब टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो जॉब वाले परेशान हैं, महंगाई बढ़ जाती है तो जॉब वाले परेशान हैं। ये हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए थी? फ्रीडम ऑफ चॉइस, बेहतरीन फ्रीडम ऑफ चॉइस ये थी कि हमें अर्निंग का तरीका और अर्निंग का सलीका और उसकी सलाहियतें बढ़ानी थी कि मैं कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं। अथॉरिटी के लिए ठीक है, अथॉरिटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कोर्सेज करने पड़ेंगे, आर्मी में जाने के अलग कोर्स हैं, SP DSP बनने के लिए अलग CSS है, PCS है, PMS है। इसी तरह से आपको अथॉरिटी के लिए शायद कुछ कोर्सेज करने हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपको सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या है? हाउ टू अर्न। आपको अपनी सलाहियतें बढ़ानी है कि मुझे आमदनी कैसे बढ़ानी है, वो सलाहियतें बढ़ाएं हम। तो उसमें क्या है, आज का वो तबका जो जॉब के पीछे पड़ा था, आज वो सबसे ज़्यादा परेशान है। वो घरों में ऐसे बैठे हैं जैसे घर की दूसरी चीज़ें हैं। दे आर जस्ट लाइक अ थिंग्स। जो घरों में चीज़ें हैं वो उस तरह पड़े हुए हैं और वो उसी जगह फिट हो सकते हैं जहाँ पे उनकी क्वालिफ़िकेशन या उनकी डिग्री जो है वो उनको कहती है कि आप यहाँ फिट हो सकते हैं। उसके अलावा वो कहीं भी फिट नहीं हो सकते। जिस तरह से एक गाड़ी का पुर्जा होता है, जिस तरह से एक मशीनरी का पुर्जा होता है, वो अपने ही मॉडल में अपनी ही जगह पे फिट होगा, कहीं और फिट नहीं हो सकता। तो ये थ्योरीज आ रही हैं अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारी चॉइस ने हमें जो है मजबूर कर दिया है। आज हम घरों में चीज़ों की तरह पड़े हैं या पेट की तरह पड़े हैं, पालतू जानवर बने हुए हैं कि दूसरे घर वाले परेशान है, यार अब इसको हम कैसे पालें। कल तक ये हमें खिला रहा था, पिला रहा था, इसकी जॉब थी, अब हमें इसको पालना पड़ रहा है। और ये कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है, जिनको ये चॉइस थी कि हमें अर्निंग करनी है, एक तरीके से नहीं तो दूसरे से, एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह से, वो लोग कामयाब हैं। मैंने फूड के बिज़नेस में, मैंने जो है ये खाने पीने के बिज़नेस में, जिन लोगों के पास पर्सनल गाड़ियाँ थी उनको मैंने बहुत ज़्यादा कमाते हुए देखा। 70% 80% उनकी आमदनी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है उन्होंने अपनी चॉइस को सिलेक्ट किया कि हमें अर्निंग पे काम करना है, फोकस करना है कि मनी कैसे कमाई जाए, मुझे आमदनी फाइनेंशियल कैसे स्ट्रांग होना है, मैं किसी का मोहताज बन के ना बैठ जाऊं। तो उसने क्या किया है, उसने अपना वे ऑफ अर्निंग चेंज कर लिया। पहले कहीं कुछ और करता था, अब उसने कहा नहीं मैं चेंज करता हूँ। जॉब वाला ये काम नहीं कर सकता था, उसने जो है अपनी चॉइस को उस एक फिक्स फील्ड के अंदर कर दिया था। अब वो बेचारा घरों में ऐसे लेटा हुआ है जैसे घर की दूसरी अशिया है वो ऐसे पड़ा हुआ है। अब जिनके पास पर्सनल गाड़ियाँ थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट तो पब्लिक बंद है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया। अब वो जो रेंट पहले 1000 था, अब वो 2000 रेंट है, लोग भी देने के लिए मजबूर है, इसको भी रिस्क लेना पड़ता है। उसकी अर्निंग बढ़ गई है, उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अब दूसरे काम से कहता है ये काम बड़ा अच्छा है। तो इसी तरह इंटरनेट है, पहले की निस्बत अब 70% जो है ना वो आमदनी इंटरनेट की बढ़ चुकी है। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ चॉइस वो करें जिसमें आपकी सलाहियतें बढ़ जाएं। जी, आपकी कामयाबी दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात ये कि आप अथॉरिटी ले लें, कोई ना कोई SP DSP जज हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं, आपके पास जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, आप उनके एम्बेसडर्स हैं। तो ये आप पोस्ट हासिल करने की एक अथॉरिटी ले लें तो डेफिनेटली इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो ये चॉइसेस हैं जिनके लिए डॉक्टर इंजीनियर्स और जॉब वालों की तरह नहीं पढ़ना पड़ता, बड़ा नॉर्मल सा सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है और ये बड़ा इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि चॉइस क्या है, हाउ टू अर्न, इसके ऊपर इंसान फोकस करे, जैसे कि बिजनेसमैन करता है, जैसे कि वो लोग जो अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हैं तो उनकी सलाहियतें क्या होंगी, उनकी चेंज हो जाएंगी। हालात के साथ वो परेशान नहीं होते। बिजनेसमैन आज का परेशान नहीं है, वो कहता है ओके अगर इस चॉइस पे नहीं तो मैं इस चॉइस पे काम करूँगा, अगर मैं जो है ये बिज़नेस नहीं कर सकता तो वो चेंज कर लेगा। तो इसलिए
फ्रीडम ऑफ चॉइस ये अल्लाह का बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। हमें अपनी सक्सेस के लिए सबसे बेस्ट जो है अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, और वो चॉइसेस, वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिससे हमारा माइंड इस काबिल हो जाए हम किसी भी हालात के अंदर जो है वो सरवाइव करें और बड़े अच्छे तरीके से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं, और एक ऑप्शन नहीं मल्टीपल ऑप्शन पे हम काम कर सकें। इन चीज़ों के ऊपर काम करें तो सक्सेस ऑफ लाइफ आपका इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बन जाएगी, आपके साथ होगी, आप किसी भी हालात में परेशान नहीं होंगे। इसी तरह आखिरत में अब आप देखें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो बंदर को खुदा बनाया हुआ है, ना उसकी शक्ल अच्छी है, ना उसका जिस्म अच्छा है, ना उसमें कोई ब्यूटी है, ना उसमें कोई एटिकेट्स हैं, ना वो जंगल का कोई बादशाह है, ना उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं, लेकिन लोग उसको खुदा बना के बैठे हुए हैं। तो उनकी चॉइस थी, फ्रीडम ऑफ चॉइस थी, लेकिन उन्होंने बदतरीन चीज़ को सिलेक्ट किया। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इंसान की फितरत है, वो मुखालफत पे खड़ा होता है, वो अपनी जो है मोनोपली चाहता है, वो अपनी जो है वो चाहता है कि मेरे पास मैं भी पावर में हूँ, मेरी बात मानी जाए, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ तबकों को अपने साथ मिलाना चाहता है। सोशल एनिमल है, मिलाना चाहता है, वो कहता है नहीं जी मैं इस पार्टी में शामिल हो जाऊँगा। कोई जो है वो नून लीग के लिए अपनी जान दे रहा है, कोई जो है पीपल पार्टी के लिए जान दे रहा है, कोई जो है किसी और चीज़ के लिए जान दे रहा है। एक चॉइस क्या है बेस्ट कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की असमत के ऊपर, उनकी इज़्ज़त और नामूस के ऊपर मर मिटने वाला बन जाऊं, उनके दीन को आगे बढ़ाने वाला बन जाऊं। हमारी ये चॉइस है, इसमें हमें आखिरत की कामयाबी मिलेगी। हमें जो है पार्टी बाजी में, कौमियत में, हमें जो है फ़िरका बंदी, ग्रोह बंदी में वल्लाह ना तो दुनिया में इसमें कोई इज़्ज़त मिली है, ना मिलने वाली है, ना मिलेगी, ना आखिरत में मिलने वाली है। अगर हमें आखिरत की इज़्ज़त मिलेगी और कामयाबी मिलेगी तो वो इस बात पे मिलेगी कि मैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामूस और इज़्ज़त के लिए मैं काम करूं, और मेरी चॉइस ये हो कि मैं फ़िरका बंदी, ग्रोह बंदी और अपनी कौमियत में जाके किसी से झगड़ा ना करूं। अगर मेरी नाराज़गी हो तो अल्लाह के लिए हो, मेरी दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था क्या कि जिसका मफहूम है कि तुम मोमिन शख्स वो है जो दोस्ती करता है तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए। ये मोमिन की पहचान है। अल्लामा इकबाल ने भी क्या कहा था, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो इंसान की चॉइस, बेहतरीन चॉइस क्या है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करे, उसकी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त और नामूस के लिए हो, उसके दीन के लिए हो, तो इंशाअल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।